اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے دہلی سے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتاؤں، آپ کو یاد ہوگا کہ 41 مزدوروں کی ایک شخص نے جان بچایا تھا جس کا نام تھا وکیل حسن۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ حکومت کے آتنکوادی بلڈوزر نے آخر وکیل حسن کے گھر کو بھی منہدم کر دیا، یعنی وکیل حسن کے گھر پر بھی بلڈوزر چلا۔ اب جب لوگ حکومت پر تھوکنے لگے تو اب دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر نے یہ یقین دہانی کرائی کہ ہم وکیل حسن کو معاوضہ دیں گے اور اس کا مکان بھی اسے فراہم کیا جائے گا۔ ہنگامے کے بعد دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر نے یہ یقین دلایا ہے۔ آئیے دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا ایک مشہور عالمی ادارہ ہے دارالعلوم دیوبند، اور دنیا جانتی ہے کہ سوتنتر سینانی اور مجاہدین آزادی کی ایک بڑی کھیپ دارالعلوم دیوبند نے تیار کی، اور اس ملک کو آزادی دلانے میں دارالعلوم دیوبند کا بڑا ہاتھ ہے، بڑا کردار ہے۔ مگر کیا کرے، ملک میں نفرتوں کی ایسی گھٹیا ہوائیں چل رہی ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے خلاف بھی بھگوا آتنکی ماحول بنا رہے ہیں۔ ابھی فی الحال آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے میں غزوہ ہند کے فتوے کو لے کر ڈاسنا کے ایک پجاری نے یہ اپیل کی تھی کہ 1 مہینے کے اندر دیوبند پر بلڈوزر چلایا جائے۔ خیر، اس کو لے کر دارالعلوم دیوبند کا بڑا بیان آیا ہے۔ دارالعلوم نے کہا ہے کہ غزوہ ہند کے فتوے پر اگر کوئی کارروائی، کوئی مقدمہ، کوئی FIR ہوتا ہے تو پھر ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ اراکین شورا نے انتظامی افسران کو جو اس کا تحریری جواب بھیجا ہے اس پر اراکین شورا مطمئن ہے، اور صاف طور سے اراکین نے یہ کہا ہے کہ آن لائن فتوے کا نظام جاری رہے گا۔ عالمی شہرت یافتہ دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کی شورا کا اجلاس متعدد اہم فیصلوں کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ اس دوران اراکین شورا نے غزوہ ہند کے فتوے سے متعلق دارالعلوم دیوبند کی جانب سے انتظامی افسران کو، حکومت انتظامیہ کو جو لیٹر
इकरार जवाब के तौर पर भेजे गए हैं उस पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे अगर हुकूमत कोई मक्कारी और बदमाशी करती है तो। नाज़रीन, हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में आखिर जो कांग्रेस का बहरान चल रहा था वो खत्म हो गया और अब सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री वजीर आला की कुर्सी पर बरकरार रहेंगे। 6 अरकान पर मुश्तमिल कोऑर्डिनेशन कमेटी का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में 3 दिनों से जारी सियासी भौचाल फिलहाल ब्रेक लग गया है। अब तक जो नाराज नजर आ रहे थे उन्हें भी मना लिया गया है और अब ऐलान कर दिया गया है कि सुक्खू मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बरकरार रहेंगे और 16 अरकान पर मुश्तमिल एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी। पार्टी आलाकमान की तरफ से शिमला भेजे गए कांग्रेस के मुश्किल कुशा माने जाने वाले कर्नाटक कांग्रेस के सदर और नायब वजीर आला DK शिव कुमार ने कहा कि हमने कांग्रेस के सभी विधायकों से बातचीत कर ली है और तमाम इख्तलाफात और नाराजगियां खत्म हो गई है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है रियासत आसाम से। जी हाँ, आसाम में अपोजिशन ने CAA के खिलाफ बंद का ऐलान कर दिया है जिसको लेकर अब हुकूमत बड़ी नाराज नजर आ रही है और हुकूमत सख्त रवैया इख्तियार कर रही है। गोगोई ने शहरियत तरमीमी कानून के निफाज से आसामी शनाख्त और आसामी सकाफत तबाह हो जाएगी ऐसा ऐलान किया है। वहीं पर नुकसान की वसूली बंद की कॉल पुकारने वालों से करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। आसाम में अपोजिशन पार्टियों ने CAA कानून के खिलाफ रियासत गिर बंद की कॉल दी है। इसी वक्त रियासत के पुलिस डायरेक्टर DGP ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने जुमेरात को यह वार्निंग देते हुए खबरदार किया है कि अगर इस बंद की और इस हड़ताल और इस आंदोलन की वजह से कुछ भी नुकसान होता है तो ये तमाम के तमाम नुकसान उन लोगों से उसूला जाएगा जो बंद का ऐलान कर रहे हैं। और इससे पहले भी मैंने इस बात को बिल्कुल साफ तौर से बताया था कि CAA का जिन अब बोतल से बाहर आने लगा है। 2024 को जीतने के लिए बीजेपी जितनी घटिया हरकतें कर सकती है, हिंदू मुसलमानों में जितनी नफरतें पैदा कर सकती है, वो सारे कार्ड बीजेपी जरूर खेलेगी। आइए बड़ी खबर आ रही है सैयद अब्दुल करीम टुंडा 10 साल के बाद आखिर बरी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि अजमेर की टाडा कोर्ट से 1993 सीरियल बम ब्लास्ट मामले में रिहाई अमल में आई है और इरफान और हमीदुद्दीन इनको उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। अजमेर की खुसूसी टाडा अदालत ने जुमेरात को 6 दिसंबर 1993 को लखनऊ, हैदराबाद, कानपुर, सूरत और मुंबई की ट्रेनों में सिलसिलावार बम धमाकों के मामले में अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने मुकदमे की मरकजी मुलजिम अब्दुल करीम उर्फ टुंडा को तमाम इल्जामात से बरी कर दिया है। इनके दीगर साथियों इरफान जिनकी उम्र अभी 70 साल है और हमीदुद्दीन जिसकी उम्र 44 साल है, इनको कसूरवार ठहराया गया है और इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इससे पहले इन्हें सीरियल बम धमाका मामले में मास्टर माइंड करार दिया जा रहा था। आइए नाज़रीन, हल्द्वानी फसाद को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि हल्द्वानी फसाद की जड़ खुद वहां का मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से नाजायज तरीके से और गैर कानूनी तरीके से एक मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर चलाया, उसके बाद फिर मुसलमानों का गुस्सा फूट पड़ा और फिर उसके बाद मुसलमानों की ही जानो माल का नुकसान हुआ। आप जानते हैं कि मुसलमान वहां शहीद भी हुए और सैकड़ों मुसलमानों की दुकानों और मकानों को नुकसान भी पहुंचाया गया। और फिर भगवा आतंकियों के तो हौसले बुलंद है क्योंकि उन्हें लगता है कि अपने बाप की हुकूमत है, अपना कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आखिर हल्द्वानी फसाद को लेकर फिर एक बड़ी खबर आ रही है कि अब्दुल मालिक जिन्हें पहले गिरफ्तार किया गया, उनके बेटे मोईद को भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। जमीयत उलमा हिंद ने बाकायदा हल्द्वानी फसाद के पूरे उस मुतासरा इलाके का दौरा किया और बिल्कुल साफ तौर से ये कहा है कि हुकूमत की बदमाशी, हुकूमत की गफलत और लापरवाही खुलकर सामने आ रही है। हल्द्वानी पुलिस और SOG की कई टीमें मोईद को पकड़ने के लिए छापे मार रही थी, जो 8
फरवरी से फरार था। टीम ने बुध को मोईत को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। खैर, हल्द्वानी के भंबोलपुरा तशद्दुद के मास्टरमाइंड अब्दुल को भी नैनीताल पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेद सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। आए दिन बड़ी खबर आ रही है। जहां हमारे मुल्क के लाडले चहीते वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अब बड़ा ऐलान किया है कि इस बार 400 पार, और फिर वो कह रहे हैं ये नारा लगाकर कि ये नारा हमारा नहीं है, अब तो जनता ये नारा लगा रही है। तो लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी, जनता का ये नारा नहीं है, आपको मशीनों पर पूरा भरोसा है और मशीनों के बलबूते पर आपका ये नारा है कि अब की बार 400 पार। और लोग ये भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से जनता के नाम से आप ये नारा लगा रहे हैं, जनता महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, दंगे फसाद से परेशान है, लेकिन अन्य भक्तों को, गोबर भक्तों को जो आपने खुश कर दिया है, तो आपको ऐसा लगता है कि अब की बार 400 पार, लेकिन ये नारा भी आप मशीनों के भरोसे पर लगा रहे हैं। इसलिए दिल्ली के जंतर मंतर पर EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ लगातार वकीलों का धरना शुरू है। हालांकि लगता है कि बात कहीं ना कहीं कबूल की जाएगी, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी और इलेक्शन कमीशन EVM के खिलाफ किसी बात को सुनने को तैयार नहीं है और 2024 जीतने के लिए किसी भी घटिया लेवल पर बीजेपी जा सकती है। इस बार 400 पार का नारा अब बीजेपी लगा रही है। बीजेपी को पूरा भरोसा है कि सेटिंग अच्छी हो चुकी है और बीजेपी को यह भी भरोसा है कि हमने जिस तरीके से हिंदू मुसलमानों के दिमाग में धर्म की राजनीति, गंदी राजनीति घुसेड़ दी है, राम मंदिर देकर हमने मुल्क के भगवाइयों को खुश कर दिया है, अब उनको बेरोजगार बना दो, उनकी नौकरियां छीन लो, उनके मुंह से निवाला छीन लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राम मंदिर से सारे मसले बीजेपी के हल हो जाएंगे। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए इसके नंबर पर कांटेक्ट करें। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से अफसोसनाक खबर आ रही है कि दो फरीक के दरमियान खूनरेज झड़प हुई जिसमें 3 लोगों के मरने की खबरें आ रही है। मुजफ्फरनगर में दर्ज फहरिस्त जात की आपसी लड़ाई में कार्रवाई हुई है और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मंगल को देर रात 2 लोगों की मौत की खबर के बाद बुध को एक तीसरे शख्स की भी अस्पताल में आखिर मौत हो गई। पुलिस ने 13 कत्ल केस में दोनों फरीक के 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुजफ्फरनगर के रतनपुर थाना इलाके के फुलत गांव में, जहां से मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब आते हैं, उस फुलत गांव में दर्ज फहरिस्त के 2 ग्रुपों के दरमियान खूनरेज झड़प हुई जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि 2024 के इलेक्शन की तैयारियां तकरीबन बीजेपी की भी मुकम्मल हो गई है और इलेक्शन कमीशन की भी मुकम्मल हो गई है। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक, आचार संहिता, अब ये तमाम चीज़ें लागू कर दी जाएगी, इसका भी ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक में मजहबी मसले पर प्रोपेगेंडा या तनकीद अगर की गई तो इस पर कार्रवाई होगी, ऐसा इलेक्शन कमीशन कह रहा है। वोटरों को अगर माली लालच दिया तो कार्रवाई होगी, दबाव में लाया तो कार्रवाई होगी। रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने वार्निंग दी है। मगर ये खबर पढ़ते हुए हमें हंसी भी आ रही है। हम देख रहे हैं कि ये सारी चीजें हो रही है और इलेक्शन कमीशन किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। ये सिर्फ जबानी जमा खर्च है और ये सिर्फ कागजी घोड़े है। वरना इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज होने के बावजूद भी पूरी पॉलिटिक्स और राजनीति मजहब के नाम पर चल रही है, प्रोपेगेंडे के नाम पर चल रही है, माली दबाव और प्रेशर के नाम पर चल रही है।
आइए नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने दिल्ली से आ रही है। जी हाँ, दिल्ली फसाद में 6 मुल्जिमों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। जमीयत उलमाए हिंद की कोशिशें, मेहनतें रंग लाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जमीयत उलमा को बेहतर जजा नसीब फरमाए कि जमीयत उलमा ऐसे वक्त में जब रिश्तेदार भी साथ छोड़ देते हैं, उस वक्त जमीयत उलमा मुल्जिमीन के हक की लड़ाई लड़ती है और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी भी नसीब होती है। अभी दिल्ली फसाद में 6 मुल्जिमान बाइज्जत बरी कर दिए गए हैं। दिल्ली फसाद के बाद उन पर दयालपुर थाने में FIR नंबर 131/2020 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। मुल्जिमीन शकील, हबीब रजा, मोहम्मद यामीन, उस्मान, शाहिद और मोहम्मद फुरकान को अदालत ने दोनों तरफ की बहसों, मुशाहिदात और शवाहिद के समाअत के बाद तमाम इल्जामात से बाइज्जत बरी कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि रिकॉर्ड पर जो भी शवाहिद पेश किए गए वो नापायदार, नामुकम्मल और मुल्जिम की निशानदही करने में नाकाम है। नीज ये भी साबित करने में नाकाम है कि मुल्जिमीन उस भीड़ का हिस्सा थे। खैर, ये बड़ा अच्छा फैसला आया है, लेकिन अब लोग ये अपील कर रहे हैं कि दिल्ली फसाद में जो भगवा आतंकी खुले आम धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं, वो अभी तक कैद में भी नहीं गए हैं, उन पर कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ है।